Hello students, welcome back to the online studies. In today's session, we will continue your social science subject, chapter number 8 of standard 8, role of parliament in a democratic country, part 2. We have discussed form of government, how parliament form, how Lok Sabha form in our first session. I hope you have understand that point and we will discuss many other points in today's session. Let's start with the main point, which is how is the ruling party is formed. Firstly, I have to clear कि ruling party किसे कहते हैं. जो currently जिसने गवर्नमेंट बनाई है जिस पार्टी ने उसको हम क्या बोलेंगे रूलिंग पार्टी. ओके, इन इजी लैंग्वेज. After the election of Lok Sabha, party-wise list of all the members of parliament is formed. From this list, it becomes clear how many members from which political parties are there. If any party wants to form the government, then there should be a majority of elected members from the party. अब इसके अंदर क्या बताया है कि जब लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है, then after there is a list, preparation of list, where you can see that how many members are there and from which party do they belong. And in this there is a basic thing, that is, if you want to use or to form a government, then there should be majority of your party. इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में अगर आपको खुद का गवर्नमेंट फॉर्म करना है, देन मेजोरिटी जो वोट है वो आपके पास या आपकी पार्टी में होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हो, आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो. After the elections, the leader of the party or a coalitions of the parties which has a clear majority in the parliament is appointed as the prime minister in the Lok Sabha. ठीक है, अब इलेक्शंस हो गए. ठीक है, इलेक्शंस के बाद जो मेजोरिटी वोट जिसके पास आता है, जिस पार्टी के पास, वो पार्टी, उसी पार्टी में से वन ऑफ द पर्सन इज सिलेक्टेड एंड he is appointed as the prime minister, that is PM of the Lok Sabha. Getting it? The prime minister of India is the head of the ruling party. ये चीज पता चल गई. प्राइम मिनिस्टर हमेशा कौन बनता है, जो रूलिंग पार्टी है उसी का जो हेड है, he is the main prime minister. The prime minister elects ministers from the member of his party. अब क्या है, जो मेन सीट है प्राइम मिनिस्टर्स की वो तो इलेक्ट हो चुकी है. ठीक है, अब वो क्या करेगा, अपनी पार्टीज में ही विल इलेक्ट वेरियस मिनिस्टर्स फ्रॉम वेरियस एरियाज सो दैट दे कैन नो एंड दे कैन वर्क वेरी वेल इन द कंट्री. इन दिस वे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड. और इसी तरीके से व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्स or selects ministers, then a council is made and it is called council of minister. The minister with prime ministers take all the decision. These ministers take care of the responsibilities of the work related to their representative ministers such as health, education, finance, etc. Prime minister elects many ministers. ओके, तो मिनिस्टर्स क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वो बनाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एंड मैनी मोर. तो ये क्या करते हैं कि इनका जो खुद का सेक्टर है वो उसको अपने इंडिया के लिए ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं. ओके, और जो मेन प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करता है, अपने जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स है उनके साथ डिस्कशन करता है, देन आफ्टर वो कोई डिसीजन लेता है. ओके, थोड़ा बहुत सिमिलर जो मोनार्ची है उसकी तरह है, लेकिन मोनार्ची में क्या है, होल एंड सोल जो किंग बोलेगा वही होगा, बट यहाँ पे ऐसा
नहीं है, यहाँ पे डिस्कशन होता है जब मेजोरिटी, इसमें भी जो मेजोरिटी वोट्स जिस डिसीजन को जाते हैं वो लागू होता है। Each minister is responsible for any question related to his ministry to the members of the parliament, और इसमें यही बताया गया है what I have said कि उसके सेक्टर में अगर कोई भी क्वेश्चन राइज होता है then he is liable for that क्वेश्चन, वही वो क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, समझ में आ गया रूलिंग पार्टी कैसे फॉर्म होती है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ इज द राज्य सभा फॉर्म, दैट मीन्स द अपर हाउस। लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड राज्य सभा इट इज द अपर हाउस। The elected members of the legislative assembly of each state elect members from राज्य सभा। अब इसके अंदर क्या दिया है, इसको वापस आप रीड करना। The elected members of legislative assembly of each state elect members for राज्य सभा। हर स्टेट में से एक लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, ठीक है, लोअर हाउस, तो उसमें से हर एक मेंबर, उसमें से एक मेंबर इलेक्ट होता है राज्यसभा के लिए। अब मैंने एक क्विज भी पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि उस पॉइंट में एट द लास्ट पॉइंट के वहां पे गलत क्या है। ये मेंबर्स जो है 250 मेंबर्स, इट इज रॉन्ग। एक्चुअली क्या है, जब ये बुक प्रिंट हुई थी at that time there were 250 members, but now it is less than 250 members, that is 245 members. Currently the members of Rajya Sabha is 245 members. Okay, फिलहाल जो बुक में लिखा है हम उसी बेसिस पे चलेंगे। आपको अगर एग्जाम में भी लिखना है तो भी आपको 250 मेंबर्स ही लिखना पड़ेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द बुक। मैंने आगे एक दो पिक्चर्स डाली है 245 के, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए कि करंट अफेयर क्या है, बट इन एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू राइट 250 मेंबर्स। आउट ऑफ देम 238 आर इलेक्टेड। The remaining 12 members are nominated by the President of India. The Rajya Sabha is the parliament house. It never gets dissolved completely. 1/3 of the member of Rajya Sabha retire every 2 years after completing their 6 years term, and the new members are inducted. अब इसके अंदर क्या है कि हमने जो लोकसभा में देखा था वहां के इलेक्शंस क्या होते हैं, हर 5 साल में एक बार होता है, लेकिन राज्यसभा में क्या है कि वो पूरा जो राज्यसभा है वो एक साथ में डिसॉल्व होता नहीं है, थोड़े थोड़े करके 1/3 जो मेंबर है राज्यसभा के वो हर 2 साल में चेंज होते हैं, ताकि जो अदर जो मेंबर्स हैं वो क्या कर सके, वो वहां पे इलेक्ट होके आ सके। गेटिंग इट? यहाँ पे मैंने फोटो रखी है 245 मेंबर्स की, तो ये सिर्फ करंटली आपको बताने के लिए है दैट द करंट सीट ऑफ राज्यसभा इज 245. The Rajya Sabha represent the state of our country. The Rajya Sabha also can propose a bill. अब राज्यसभा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट्स के, हर स्टेट में से, हर लोकसभा में से एक एक मेंबर इलेक्ट होके राज्यसभा में जाता है अपर हाउस में, और वो क्या होता है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, एंड द राज्यसभा कैन ऑल्सो प्रपोज अ बिल। दैट मीन्स अगर उसको कोई भी चीज की जरूरत लगती है तो क्या कर सकता है, उसका एक बिल रिक्वेस्ट ऊपर भेज सकता है। It is important to have the consent of the Rajya Sabha before passing any bill. और एक और मेन चीज है, whenever the head, that means the president or any other person who passes a bill, before that he has to take a meeting with the Rajya Sabha, with the members of Rajya Sabha, and when the majority votes are with the yes section, that means अगर वो सब मान जाते हैं, मेजोरिटी अगर मान जाते हैं बिल के लिए, तभी वो बिल होता है, वो पास होता है, अदरवाइज वो बिल कैंसिल हो जाता है।
द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिव्यूज द बिल पास बाय द लोकसभा, और जो पार्लियामेंट हाउस है वो हमेशा क्या करता है, चेक करता है कि राज्यसभा ने जो बिल पास किया है वो सही है कि नहीं, उसमें हो सके तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नहीं ऐसा सजेशंस भी वो आगे पास करते हैं. Thus, the role of Rajya Sabha is very important. The person who presides over the sessions of Rajya Sabha is known as the chairman. और जो राज्य सभा में मेन पर्सन जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, चेयरमैन. ओके, जो सेशन वाइज हर जो मीटिंग होती है उसमें अलग अलग होते हैं, वो भी चेंजेस होते रहते हैं. इसीलिए क्या बोलते हैं कि राज्यसभा है, द रोल ऑफ राज्यसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट. While the Vice President of India acts as the chairman of राज्य सभा, और हमने जो चेयरमैन की बात की थी राज्यसभा में, तो वो कौन होते हैं, ही the Vice President of India is the person who is the chairman of राज्य सभा. तो राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के होते हैं. Now we will discuss about the session. That means the question session in the parliament. तो पार्लियामेंट के जब सेशन होते हैं उसके अंदर क्या चीजें डिस्कस होती है. ओके, when the parliament is in session at the beginning of the day, the time for the question hour is decided upon. During the question hour, the members of parliament task questions to gather information on the working of the government. अब यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट में दोनों पार्टी आती है, रूलिंग पार्टी भी और अपोजिशन पार्टी भी. ओके, लेकिन सामने मेन मेंबर कौन रहता है, जो रूलिंग पार्टी का होता है. देन दे डिस्कस एंड दे ऑल्सो राइज मेनी क्वेश्चंस कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है और क्या नहीं. दिस इज हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. Through the medium of questioning, members draw the attention of the government towards its loopholes. अब इसी चीज में क्या होता है, जब ये डिस्कस होता है पार्लियामेंट के अंदर कि भाई अगर कोई एक सेशन है, फॉर एग्जांपल कि एजुकेशन मिनिस्टर्स ने या फिर एजुकेशन मिनिस्टर ने उसके लाइन में उसने क्या किया है या क्या नहीं, या फिर क्या करने वाला है, तो ये सब क्वेश्चनरी वहां पे होता है. और इसी चीज से आगे क्या होता है कि जो लोप होल्स है, दैट मीन्स जहां कमियां जो रहती है वो और बेटरमेंट में हो सकती है, ये डिसीजन से यही पता होता है. In this way, the government comes to know about the views and opinion of the people through their representative. और इसी तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं पीपल, वो डायरेक्टली क्या करता है कि पीपल्स को क्या चीज चाहिए वो वहां पे बताता है. It is an important responsibility of the members to question the government. ये बहुत मेन चीज है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर्स की, वो अपने गवर्नमेंट को क्या करे, क्वेश्चनरी करे कि वो अपना वर्क सही से कर रही है कि नहीं. In this way, the government comes to know about the views and opinion of the people through their representative, and in this way only government will work in the right way, and he will be known that what is the views and opinion of the people. It is an important responsibility of the members to question the government. Okay, the opposition party plays a major role in the effective administration of a democracy. जैसे मैंने बताया था कि ओपोजिशन जो पार्टी रहती है वो इस चीज में मेजर रोल का पार्ट जो बोलते हैं हम, अगर एक पिक्चर की बात करें तो जो विलन है जस्ट पार्ट है जोक, तो जो ओपोजिशन पार्टी है वो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे हम अगर पिक्चर में देखें, अगर हीरो ही रहे तो वो पिक्चर में मजा आएगा नहीं, तो वहां पे विलन भी होता है. लाइकवाइज द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टी. ओके, तो अपोजिशन पार्टी भी क्या होती है, एक मेजर रोल प्ले करती है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव वे में वर्क करे. इट इज highlights the loopholes in the policies and the programs of the government.
अब एक बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें वो चीज कभी पता नहीं चलती जो हमारी आंखों के नीचे होती है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैनॉट सी आर माउथ, आर टीथ, आर nose, okay, downwards. Some of them are easily see their nose. लेकिन हम जब मिरर के सामने आते हैं तो हम वो चीज देख सकते हैं. ओके, हम ओपन आइज में ऐसे वो चीज पॉसिबल नहीं है. तो ये चीज अब अगर हम पॉलिटिक्स में आए, ओके, तो जो पॉलिसीज हमने बनाई है वो वी आर करेक्ट एट आवर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सामने वाले पर्सन के ओपिनियन क्या है वो कुछ और भी हो सकता है. ओके, तो हो सकता है कि कुछ गलती हो हमारी पॉलिसीज में, या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसमें कोई गलती हो. तो ये सब चीजें कब सॉल्व होती है? जब क्वेश्चनिंग होती है. और क्वेश्चनिंग मैक्सिमम टाइम कौन करता है? अपोजिशन पार्टी. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव वे में काम करवाने के लिए. द पर्सन हु presides over the session in the Lok Sabha is known as the speaker. और जो मेन पर्सन जो सबको हैंडल करता है उसको हम क्या बोलेंगे? He is known as the speaker. President is the most important integral part of the parliament. और president जो है वो मेन important part है इस parliament के. Okay? Bill that is passed by both the houses can become a law only after his signature. समझ लो कि कभी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस पास हुए, ओके, वो लागू कब होंगे? जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करेंगे. उसके बिना वो बिल या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो आगे फॉलो होंगे नहीं. He has the power to decide about the meetings of the parliament and announces the completion of the session to. और यही मेन इंसान है. अगर हम मेन पर्सन की बात करें तो जो मीटिंग्स होती है पार्लियामेंट के, तो उसके अंदर डिसीजन लेने का जो मेन पावर है वो इनके हाथ में ही होता है. ओके, और जो अनाउंसमेंट है या फिर सेशन जो खत्म हो गया, ये सब किसके हाथ में रहता है? स्पीकर के हाथ में, जो मेन पर्सन सामने बैठता है. ओके, गेटिंग इट? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड all this point with session 1 and 2, and here the chapter 8 is completed. I hope you are doing your homework time to time and you are studying regularly. It is very good for you if you are studying. अगर टीचर्स आपके पीछे इतनी मेहनत कर रही है, then you too should study. For now, thank you for listening. Stay home, stay safe.